जब हम बच्चों के भविष्य की प्लानिंग की बात करते हैं, तो आज हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बड़ा बिज़नेसमैन बने, पायलट बने और लाइफ में बहुत अच्छा सक्सेस उसको मिले। जो हमने हमारी लाइफ में नहीं अचीव किया, जो हम हमारी लाइफ में नहीं कर पाए, वो सब हमारा बच्चा कर पाए। दिस इज़ व्हाट वी एक्चुअली विश फॉर चाइल्ड। बट अगर हम किसी भी बच्चे को आज पूछते हैं कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? तो उसका जवाब आता है, मैं बड़ा होके डॉक्टर बनूँगा, मैं बड़ा होके बड़ा बिज़नेसमैन बनूँगा, ये मैं बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ बनाऊँगा। ऐसे जवाब हम आज सुनते हैं बच्चों से। अगर हम नाम भी पूछते हैं बच्चों को कि आपका नाम क्या है? जैसे मेरा नेफ्यू है, तो मैं उसको पूछता हूँ कि व्हाट इज़ योर नेम? तो मुझे बोलता है माय नेम इज़ डॉक्टर काव्या शाह। तो दिस इज़ व्हाट वो नाम से ही अपने आप को डॉक्टर बुलाने लगा है अभी से। सो बच्चों के जब भी भविष्य की बात आती है, तो ये हमें सबसे पहले सोचना पड़ेगा। सो बच्चों के सपने बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, पर जब भी हम उसके प्लानिंग की बात आती है, हम अपने आप से पूछना है कि क्या हमने बड़ा सोचा है? क्या हमने उनके प्लानिंग को सच करने के लिए सोचा है? हम सोचते हैं, हमने 2, 3, 4 लाख में स्टडी किया, तो उनका भी हो जाएगा। बट द सिनेरियो इज़ डिफरेंट। सो चलिए जानते हैं कैसे हम बच्चों के लिए बेहतर प्लानिंग कर सकें ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सके। थैंक यू ऑल आवर इन्वेस्टर बिकॉज ऑफ देम वी रिसेंटली अवॉर्डेड बाय डॉक्टर सीएम मिस्टर नितिन पटेल एट Z24 कल्लाक फॉर अ बेस्ट फाइनेंशियल प्लानर बाय 2020-21। हमारा विजन है 2 लाख लोगों परिवार को फाइनेंशियली एजुकेट करना बाय 2025 ताकि हम लोग 10,000 परिवार को सुख शांति और समृद्धि दे सके। Our mission is to educate and help in accomplishing individuals' life, financial dreams into goals and goals into reality. A small journey of weaker investment I would like to share with you. I request please mute yourself. So right now we are managing asset of around 513 crores in mutual funds. Overall assets we are managing 789 crores. Total number of happy families we are serving more than 897, and as on date, 300 families achieved financial freedom through weekend investments. So we welcome you all for wealth creation and journey of wealth with us. Before we proceed further, and we invite speaker, let's follow some ground rules so we can attend with 100% focus. This session will be of 50 to 60 minutes, and then question answer session will be there. Please avoid mobile during this session so that you can focus and you don't miss each and every data. Maintain high energy, make it interactive. If you have anything to ask, you can put in a chat box. We will definitely cover during the session, and stay till the end with high energy so you don't miss any detail. Take notes, be ready with pen and paper, and now pay attention. Know about speaker. He is very passionate to finance, to educate people and help people to transform lives. He educated more than 1 lakh people till now. More than 2,000 child's parents successfully completed child education planning with his guidance. He did MBA Finance and Chartered Financial Goal Planner. He awarded as India's most trusted financial advisor by CNBC TV 18. Also, he did wealth management course, financial planning course, business development course, financial business analyst from IIM, from different IIMs, certified unique financial planner from NLE Mumbai. So let's learn very important lessons of how you can make child and your life happy and financially successful from real successful person. He has started his own investment journey in 2003, and right now he is completely financially free in 17 to 18 years. He is owner, director of We Care Investments. So put your hands together and help me welcome none other than Mr. Nikhil Thakkar. Over to you, Nikhil bhai. Thank you so much, Tushar, and thank you so much. Thank you so much for coming on Sunday morning. सबसे पहले तो आज बच्चों का दिन है 14th November and Children's Day. So great Children Day to each and every child of our nation. और यही बच्चे हैं जो आज नहीं पर कल हमारे नेशन को और सक्षम करेंगे. And this is the land of opportunities जिसको हम बोलते हैं India, the land of opportunities. Yes friends, thank you so much for giving your valuable time. प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले जो तुषार ने बताया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताई.
कितने लोग यहाँ पे गाड़ी चलाते हैं? फोर व्हीलर कितने लोग चलाते हैं? हम चैट बॉक्स यूज करेंगे फ्रेंड्स। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, चाय वाय पिया है कि नहीं पिया? अगर नहीं पिया है तो डेफिनेटली इस 50 मिनट्स के बाद, 1 घंटे के बाद चाय पीना। बीच में चाय मत पीना, क्योंकि ये टाइम है हमारे बच्चों के लिए एंड वी शुड बी वेरी सीरियस फॉर आवर चिल्ड्रन। क्योंकि आज तक हम लोगों ने काफी सारे सेमिनार्स, काफी सारे प्रेजेंटेशंस, वेबिनार पोस्ट कोविड और ड्यूरिंग कोविड एंजॉय भी किया है, लर्निंग भी किया है, सब कुछ किया है। बट दिस इज द टाइम which is for your children's, which is very serious, and take this as a serious note. So friends, let's use chat box. अगर आप chat box use करोगे तो even we will enjoy this, और मुझे भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं केवल कंप्यूटर के सामने बात कर रहा हूँ। So friends, गाड़ी कितने लोगों ने पहली बार खरीदी? तो पहले क्या होता था, आपको पता है इंडिया के मार्केट में सबसे बड़ा मार्केट शेयर किसका है गाड़ी के सेगमेंट में? कौन सी गाड़ी का सेगमेंट सबसे बड़ा मार्केट शेयर इंडिया में? आज से 3 साल पहले सबसे बड़ा मार्केट शेयर मारुति का था। यस ललित सर, मारुति का सबसे बड़ा सेगमेंट था। बट आप बिलीव नहीं करोगे सर, आज के दिन में उनका मार्केट शेयर ग्रेजुअली नीचे आ रहा है। और ये क्यों नीचे आ रहा है? उस एक ही चीज बोलता है, दैट इज कॉल्ड चेंज। पहले क्या था फ्रेंड्स कि जब हम गाड़ी लेने जाते थे तो हमारे एक्सपेक्टेशंस क्या थे? जब हमारे फादर या उनके फादर जब गाड़ी लेने जाते थे मारुति के पास, तो उनके एक्सपेक्टेशंस थे कि मुझे 4 व्हील की गाड़ी चाहिए, चलनी चाहिए, एसी। प्राइस बोलेंगे तो क्या चलेगा, एसी भी नहीं होगा तो चलेगा, विंडो ओपन करके चलेंगे। उसके बाद सेकेंड गाड़ी आई। जब सेकेंड गाड़ी आती है तो उसमें कुछ चेंजेस चाहिए, एसी चाहिए, थोड़ी फैसिलिटीज चाहिए। ग्रेजुअली थिंग्स आर ग्रोइंग। मारुति ने भी वो कोप अप किया। बट आज के दिन में अगर आप पिछले 2 साल के सेल्स देखोगे तो मारुति का मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 20% डाउन है। एंड द रीजन इज एक्सयूवी गाड़ी, जो नई गाड़ियां आजकल प्रीफर कर रहे हैं लोग, सिडान से बाहर निकल के एक्सयूवी में जा रहे हैं। एंड उसी एक्सयूवी सेगमेंट में टाटा इज नाउ रूलिंग, महिंद्रा इज कमिंग आउट, और फ्रेंड्स कुछ कंपनियां तो इंडिया से बाहर निकल गई। फोर्ड जैसी कंपनी जो चाइना में, यूरोप में, बहुत सारे कंट्रीज में एज अ वाइटल सेगमेंट, मतलब अच्छा प्लेयर तरीके से काम कर रही है, वो इंडिया से बाहर निकल गई क्योंकि उनको पता ही नहीं चला कि ये चेंज कैसे हो रहा है, और वो चेंज के साथ खुद को चेंज नहीं कर पाए। एंड दिस इज समथिंग विच वी नीड टू टेक केयर इवन व्हेन इट कम्स टू आवर चाइल्ड्स एजुकेशन। क्योंकि जो चेंज आ रहा है, हम लोगों ने जब पढ़ाई की थी तब जो एक्सपेंसेस थे, हमारे फादर ने जब पढ़ाई की थी तब जो एक्सपेंसेस थे, और हमारे बच्चों ने जो पढ़ाई करने वाले हैं उनके जो एक्सपेंसेस है, देयर विल बी अ ह्यूज चेंज। सो आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दिस चेंज? अगर आप रेडी हो तो यूज द चैट बॉक्स एंड जस्ट टेल मी यस इन द चैट बॉक्स। वी वुड लव टू हैव योर चैट। आप चैट बॉक्स यूज करते रहिए फ्रेंड्स। लेट मी शेयर यू द प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन तुषार ने जैसे डिस्क्लेमर बोला, वैसे आने वाले 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर सुपर डुपर रिस्पांस। नेक्स्ट 45-50 मिनट्स जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर चाइल्ड एजुकेशन। और यहाँ से कई चीजों में ऐसा होगा कि कुछ पेरेंट्स को लगेगा ये मुझे लागू नहीं पड़ता है, कुछ पेरेंट्स को लगेगा ये मुझे लागू पड़ता है। But overall, this is a general presentation. We can take all those things in one-to-one basis whenever we meet once again. But make sure कुछ चीजों में अगर आपको लग रहा है कि ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, then also just be patient and then we can conclude। और मेजोरिटी आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी कंसर्न्स होंगे, वो एंड तक हम कवर कर लेंगे। अगर नहीं है तो हम क्वेश्चन आंसर सेशन में ले लेंगे। So with this great note, once again, thank you so much for coming today and joining us. Let us start the presentation। और प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले लास्ट में आई एम गोइंग टू गिव वन वेरी गुड सरप्राइज। ये सरप्राइज क्या है दोस्तों, उसको हम डेफिनेटली जानेंगे, पर लास्ट 5 मिनट्स में दैट आई एम गोइंग टू टेक केयर विच विल डेफिनेटली चेंज फ्यूचर ऑफ योर किड्स। कैसे? कितने लोग चाहते हैं कि आपके बेटा या बेटी आईआईएम से पास आउट हो, आईआईटी से पास आउट हो? कितने लोग चाहते हैं? आप चाहते हो या नहीं चाहते हो? चलो टेल मी यस और नो। चाहते हैं? डेफिनेटली चाहते हैं, यस। बट
आई एम गोइंग टू गिव यू वन सरप्राइज, जहां पे अगर आपका बेटा या बेटी शायद आईआईएम से पास आउट ना भी हो, फिर भी they will become a much matured person, they will become a much focused person in their life by adopting a simple 3 step processes. और वो 3 स्टेप प्रोसेसेस जो है वो मैं आपको आखिरी 5 मिनट में शेयर करने वाला हूं। एंड आई एम चैलेंजिंग यू, अगर आपका बेटा या बेटी आईआईएम से या आईआईटी से पास आउट नहीं होंगे, then also they are going to become an extraordinary person in their life by following this 3 step process. और वो स्टेप, ये जो 3 स्टेप प्रोसेस है वो करवाने वाले पेरेंट्स है, बिकॉज चिल्ड्रंस आर द गिफ्ट ऑफ गॉड, और उनकी जो आदत है वो चेंज को इमिडिएटली अडॉप्ट कर लेता है। आप देखिए दोस्तों, जितने भी चेंजेस आए हैं टेक्नोलॉजी से लेके कुछ भी है, वहां पे हमारे बच्चे बहुत फास्ट है, rather parents are slow. So stay tuned till the end. With this, let me take you to the small journey. एक छोटी सी जर्नी पे लेके जाता हूँ। शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा वीडियो शेयर करता हूँ। इस जर्नी में एक तरफ है पेरेंट्स, एक तरफ है बच्चे, और देयर इज अ कंपटीशन, एक ड्राइंग कंपटीशन रखी है, जहां पे ऑन वन साइड पेरेंट्स are drawing their child's future, and on the another side children are drawing their child future. Let us see this drawing competition. I hope audio is audible. Yes, it is. We've been invited for this fun experiment. I'm still wondering what it's going to be like. Hope is very excited to paint, and Ishan wants to have fun with that. What you want your child to become. So I thought my son, he has inclinations in science. That's what we have made him. He is busy making some experiments that I want our son to become a scientist. I want to be a artist. I want to be a dancer when I become big. Basically, I want him to become a pilot. What is your Ferrari racer? He always thought that he wanted to become a scientist, do something in science. But I guess now he has different plans. I just found that my daughter wants to become a baker. I didn't know I'm surprised. I didn't know that Nancy wanted to be an artist. How will I want to become an automobile engineer maybe? You never know. You need to plan for it. यस फ्रेंड्स, इस वीडियो में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे बच्चे बनना कुछ चाहते। ओके, वीडियो वाज नॉट प्रॉपर्ली ऑडिबल टू वीजी मैडम। ओके, नो प्रॉब्लम मैडम, वी कैन शेयर दिस वीडियो ऑन योर ईमेल आईडी व्हेनेवर यू शेयर अस फीडबैक फॉर्म। इस वीडियो में एक सिंपल सी चीज बताइए मैडम, कि ऑन वन साइड बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं, ऑन अनदर साइड पेरेंट्स ड्राइंग कर रहे हैं। बच्चे उनको फ्यूचर में क्या बनना है वो ड्राइंग कर रहे हैं, और अनदर साइड पेरेंट्स फ्यूचर में क्या बनना है वो ड्राइंग कर रहे हैं। बट दोनों के एक्सपेक्टेशंस, दोनों के थॉट प्रोसेस कंप्लीटली डिफरेंट है। और इसी के साथ मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं,
क्या आपको पता है आपका बेटा या बेटी फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं? हाउ many ऑफ यू आर नोइंग? क्या आपको पता है उनको क्या बनना है? लेट अस यूज द चैट बॉक्स फ्रेंड्स. नो. सुपर. वाओ. No. Majority of the people except one saying yes. Definitely. अगर आपको पता है, it's a great. अगर आपको नहीं पता है, then also it is superb. But this is the time. आज चिल्ड्रंस डे है, संडे है. Definitely spend 1 hour with your child. Have some discussion और उसकी थॉट प्रोसेस समझिएगा. आपकी थॉट प्रोसेस मत दीजिएगा, बिकॉज हमारे टाइम में प्रोफेशंस, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, बहुत सारे ऐसे ही प्रोफेशंस थे. सीए बन जाओ, यही सब प्रोफेशंस थे. बट नाउ डेज फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं करोगे, आजकल ऐसे ऐसे प्रोफेशंस हो चुके हैं जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की है. आजकल ऐसे ऐसे नए नए जॉब्स, नए नए बिजनेसेस हो चुके हैं जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की है. कैन यू इमेजिन 37 इयर्स ओल्ड का जो स्टार्टअप है वो आज हिंदुस्तान में 10,000 करोड़ की कंपनी बना के बैठा है. फ्रेंड्स, आपको पता है कि ये फार्म इजी, जो हम बात कर रहे हैं, फार्म इजी का शायद आईपीओ आ रहा है आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर. और ये फार्म इजी का आईपीओ घाटकों पर के 5 फ्रेंड्स बैठ के उन्होंने ये कंपनी स्टार्टअप की थी, क्योंकि उनको लगा कि जब जोमेटो पे फूड की डिलीवरी हो सकती है तो क्यों हम दवाई की डिलीवरी नहीं कर सकते. And friends, this is something, this children are, this is something Naya Bharat, this is something new generation, and we have to accept this. अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हो तो फ्रेंड्स, बी रेडी फॉर द चेंज. और ये चेंज क्या है? देयर इज अ वन शॉकिंग न्यूज. शॉकिंग न्यूज इज 20% of the parents are able to support their children financially for their higher education, and 80% cannot afford it. कितने को लगता है कि यूएस में 12th स्टैंडर्ड के बाद जो प्रोसेस है, बच्चों को अगर आगे पढ़ना है तो उनको अपने आप कमाना है और उनको अपने आप मेहनत करनी है और उसके साथ साथ अपना एजुकेशन कर सकते हैं. क्या आप चाहते हो इस प्रोसेस को फॉलो करना? हम तो वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, पिज्जा से लेके सब कुछ चीजें हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से अडॉप्ट कर ली है. बट वुड यू लाइक टू अडॉप्ट दिस कल्चर फॉर योर चिल्ड्रन? कितने लोग मानते हैं कि ये कल्चर सही है, ये अडॉप्ट करने की जरूरत है? डेफिनेटली सर, कुछ तो बनेगा जरूर, और वो बनेगा, उसके ऊपर हमको होगा गुरूर, उसके ऊपर हमको होगा प्राउड, वो तो हम सभी को पता है. बट ये कल्चर जो वेस्टर्न कल्चर है, वो कल्चर कितने लोग मतलब अडॉप्ट करना चाहते हैं? डेफिनेटली इन इंडिया द सर्वे सेज पेरेंट्स डोंट वांट टू अडॉप्ट दिस कल्चर. ये मैं नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये नॉट ओनली ऑफ इंडिया, वर्ल्ड की 12 कंट्रीज का एक सर्वे किया गया था टाइम्स ऑफ इंडिया में. वी विल शेयर यू द लिंक, जहां पे पेरेंट्स आर कंसर्न्ड अबाउट देयर एजुकेशन, फॉर देयर किड्स एजुकेशन, बट अनफॉर्चुनेटली वो प्लान नहीं कर पाते. और वो प्लान क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि मेजोरिटी जो सेल्स पीपल होते हैं वो एक प्रोडक्ट लगा के देके जाते हैं कि ये आपका बेटा बॉर्न हुआ है, आपके बेटे के लिए एक पॉलिसी है, दिस इज द बेस्ट पॉलिसी, आप उसको ले लीजिए. हमने एज अ पेरेंट्स इमोशन में वो पॉलिसी भी ले ली, बट वी डोंट नो व्हाट मैच्योरिटी वी आर गोइंग टू गेट. हम हर साल रेगुलरली डिसिप्लिन वे में प्रीमियम भी बढ़ते जाएंगे, रेगुलरली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते जाएंगे, बट वी डोंट नो what amount we are going to get, and we don't know what amount we need for our children's education. और ये amount, ये need जाननी है तो just we are going to share all these things in our presentation in next few minutes, and this is what we are going to cover today. But friends, आप बिलीव नहीं करोगे, आपके बेटे का हायर एजुकेशन और आपके बच्चों का जो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है, इट इज ऑलमोस्ट, अगर आप उनकी एजुकेशन कॉस्ट देखोगे तो आप एक हायर एंड की गाड़ी भी खरीद सकते हो उसी कॉस्ट में. रॉयल्स रॉयस जैसी गाड़ी या मर्सिडीज जैसी गाड़ी आप डेफिनेटली उसी एजुकेशन कॉस्ट में खरीद सकते हो. बट हमारी वो प्रायोरिटी नहीं रहती है. हमारी प्रायोरिटी क्या रहती है? बच्चों का एजुकेशन. यस फ्रेंड्स, बट इफ यू, आई वुड लव टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पे आपको चैट बॉक्स यूज करना है. सो पहला क्वेश्चन आई वुड लव टू आस्क यू, डू यू ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फॉर योर चाइल्ड? अगर आप चाहते हो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, जस्ट यूज द चैट बॉक्स.
and type yes or no. Thank you so much, Gargi man, for an active participation. Shalini man, thank you so much, Ignesh bhai. Thank you so much, Vidhi. That is what we feel. What is do you know what is the estimated cost of your desired education inflation के साथ? मतलब आज जो expenses है उसकी future cost क्या होगी वो क्या आपको पता है? If you know, type yes or no. Not really. Definitely, majority of the people are denying. How much provision you should make for this particular goal? इस goal को achieve करने के लिए yes confused. Don't worry, sir. We are going to cover this and we will give you 100% clarity. And for the detailed clarity, we can set one-to-one with our team and with me also. So, कितने लोगों को पता है कितना प्रोविजन करने की जरूरत है? And this is what exactly we do. यही हमारा काम है. This is what exactly we are doing, and you won't believe till date हम लोगों ने more than 700 children's का education in last 20 years 700 से ऊपर children का education में support system setup किया है, and thanks to God that we are able to help these families. So and thanks to our investors who had kept trust on us. सो कितने लोग चाहते हैं कि ये हमारे बच्चों का एक वेडिंग भी होना चाहिए? एजुकेशन तो सही है पर अच्छा वेडिंग भी होना चाहिए, एक डेस्टिनेशन वेडिंग। आजकल तो क्या होता है, पहले हमारे पेरेंट्स को लगता था कि 800,000 लोगों का तो डिनर होना ही चाहिए, वो जमणवार, हम गुजराती में बोलते हैं जमणवार होना चाहिए। बट कितने लोगों को ऐसा लगता है कि अभी इतने लोगों का नहीं करना है पर 200 का 300 का एक सुपर डेस्टिनेशन वेडिंग करना है? हाउ मेनी ऑफ यू विश टू हैव अ सुपर डुपर डेस्टिनेशन वेडिंग फॉर योर किड्स? यस सर, नो तो टाइप करो सर। आजकल तो टाइपिंग की ऐसी आदत पड़ गई लोगों को उंगलियों में कि रात को सोते वक्त भी उंगलियां ऐसे ऐसे घूमती रहती है, बिकॉज survey says that majority of the people spend their maximum time on mobiles and this is fact of our life. So friends, और इसी वेडिंग के लिए क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी, कितनी महंगाई होगी, कितना खर्चा होगा, क्या आपको पता है कितना होगा? So this is what we are going to cover in next 40 minutes. How much provision you have to make for this goal. And finally, आपका जो अर्निंग पावर है वो कल जाके स्टॉप हो जाएगा। तो क्या आपका ये जो गोल्स है वो आप अचीव कर पाओगे? दिस इज समथिंग अ सीरियस मैटर विच वी नीड टू थिंक। क्योंकि कितने लोगों को लगता है कि आपका अर्निंग्स परमानेंट है इन दिस फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड? कितने लोगों को लग रहा है कि अर्निंग्स परमानेंट है? इफ यू फील, टाइप यस। इफ यू फील कि नहीं है परमानेंट, एग्जैक्टली सर, नथिंग इज परमानेंट and for any uncertainties we need to be ready. So we are going to cover all this question, and as a parent I would love to ask you, we all want to give our child the best, that is for sure, definitely yes, and that I have already received your answer, but are we all financially equipped to give our child the best? आंसर आपने दे दिया है नो। सो फॉर दैट लेट अस स्टार्ट द जर्नी। क्योंकि नॉर्मली आज तक हम लोगों ने क्या देखा है कि प्रोफेशंस माने डॉक्टर्स, पायलट, इंजीनियर। सर, प्रोफेशंस हैव चेंज्ड फ्रेंड्स, प्रोफेशन हैव चेंज्ड लाइक एनीथिंग। आजकल यूट्यूबर भी बहुत बढ़िया इनकम कर रहा है। आजकल एक सोशल डिजिटल मार्केटिंग हैज बिकम एंड वन ऑफ द सुपर डुपर सोर्स ऑफ अर्निंग्स। उसका भी एक एक्सट्रीम लेवल बन चुका है। थिंग्स हैव ग्रोन ड्रास्टिकली चेंज। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे ऐसे ऐसे प्रोफेशंस बाहर आ रहे हैं, बेकर्स, आर्टिस्ट, एंड थिंग्स आर चेंजिंग, और ये चेंज होना ही चाहिए। और इसका रीजन क्या होगा पता है? बिकॉज व्हेन वी स्टार्टेड अवर कैरियर, हमारे पास पैसे कमाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। वी हैव टू अर्न बिकॉज वी वर पासिंग थ्रू दैट इकोनॉमिकल साइकिल। बट नाउ आवर किड्स, उनका बेस्ट पार्ट क्या है? उनके लिए गाड़ी which was need for us, but for them it is not a need, it is a common thing. Now उनके गोल्स, उनके एस्पिरेशंस एक नए लेवल पे है, और शायद वो स्पोर्ट्स में अगर बैडमिंटन प्लेयर भी बनना चाहता है या क्रिकेटर बनना चाहता है, वी कैन अफोर्ड टू गिव हिम दैट लिबर्टी, और वो आगे जाके एक अच्छा प्लेयर बन सकता है। आप सोचिए फ्रेंड्स कि वर्ल्ड में सबसे अच्छे प्लेयर्स मतलब क्यों बाहर निकलते हैं, अच्छा आर्टिस्ट कहाँ से बाहर निकलता है? एवरीथिंग इज फ्रॉम यूएस। क्योंकि वहां पे बेसिक नीड के ऊपर फोकस नहीं हुआ, बच्चों को वो फ्रीडम मिला। एंड नाउ इन दिस जनरेशन वी आर एबल टू गिव दैट फ्रीडम टू आवर किड्स। क्योंकि
वो जो कैरियर सिलेक्ट करना चाहता है वो कैरियर हम दे पाते हैं, क्योंकि वी कैन अफोर्ड टू गिव इट, एंड फॉर दैट वी नीड टू सिक्योर देम फाइनेंशियली। क्योंकि कोई भी फील्ड में जाएगा, इन्वेस्टमेंट विल बी देयर। मैं खर्चा नहीं बोलूंगा फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू बी देयर, एंड दैट इज समथिंग which will give you a regular returns, which will give him a regular returns throughout his life. So as a parent, आप फाइनेंशियली इक्विप्ड और फुलफिल, ये जो बच्चों के एस्पिरेशन है उसको फुलफिल करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हो। पर हर पेरेंट्स फुलफिल नहीं कर पाता है, उसका रीजन ये है। और ये ब्रेकअप जो मैंने बनाया है फ्रेंड्स, ये भी टाइम्स ऑफ इंडिया का ही आर्टिकल है। इस आर्टिकल में बहुत ही बढ़िया ब्रेकअप दिया है, एंड यू कैन चेक योर ओन पोर्टफोलियो, यू कैन चेक योर ओन बजटिंग। नॉर्मली आप जो 100 रुपए कमाते हो उसमें से 53% एक्सपेंडिचर इज फॉर योर चाइल्ड एजुकेशन। यहाँ पे मैंने टायर 2 एंड टायर 3 टाउन्स जो दिया है, क्योंकि कुछ लोग जो है, जो आनंद सिटी या बड़ौदा इज अ टायर 2 एंड आनंद इज अ टायर 3 सिटी। वैसे ही कोई अहमदाबाद से होगा, कोई बॉम्बे से होगा, तो ऐसे हर एक जगह पे एजुकेशन में परसेंटेज वाइज थोड़े बहुत चेंजेस हो जाएंगे, बट इन जनरल यही सिनारियो रहेगा। 53% of your income goes for education, 9% of your income goes for housing, 10% for entertainment, 7% for clothing, and this is something a drastic change in our lifestyle today. और ये चीज को अगर आप आगे देखेंगे, अगर आपको चाहिए कि आपको आपके जो भी गोल्स है, एस्पिरेशन है बच्चों के, उसे अचीव करना है, देन यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि बच्चा 12th में आता है तब जाके सोचता है कि यार मैं उसको हायर एजुकेशन के लिए मुझे पैसा चाहिए। कॉलेज में आता है तब सोचता है कि हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए। वहां पे एक सीरियस जंक्शन पे आप खड़े हो, एंड यू ऑल ऑफ अ सडन फील दैट मुझे 50 लाख निकालने हैं कनाडा के लिए, बच्चे को भेजना है। सॉरी। अगर कनाडा के लिए बच्चे को भेजना है, इमीडिएटली आप पैसा कहाँ से लाओगे? और वहां पे एक सबसे बड़ा रिस्क आएगा कि आपने जो आपके रिटायरमेंट के लिए पैसे इकट्ठे किए हैं, आपने जो आपके पीएफ में पैसे इकट्ठे किए हैं, उस पैसे को मेजॉरिटी पेरेंट्स यूज करते हैं। और जो पेरेंट्स पीएफ को यूज कर लेते हैं, दिस इज समथिंग विच आई हैव सीन इन माय लाइफ। ये 18-20 साल के कैरियर में मैंने एक चीज देखी है फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेडिक्लेम नहीं लिया होता है ना, उनकी लाइफ में 100% हॉस्पिटल के क्लेम आते हैं। जिन लोगों ने मेडिकल लिया हुआ होता है उनके क्लेम कम हो जाते हैं, बिकॉज उन्होंने अनसर्टेनिटी को ट्रैप करके रखा है, और बैक ऑफ माइंड में दे आर टेंशन फ्री और उनको प्रॉब्लम नहीं आता है। दिस इज रियलिटी ऑफ लाइफ फ्रेंड्स। आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ऐसा होता है कि नहीं होता है? आपके अगर आप देखोगे आपके इर्द गिर्द आपके फैमिली फ्रेंड्स में, ऐसा होता है कि नहीं होता है? यस और नो फ्रेंड्स? आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ रिस्पॉन्स। डेफिनेटली यस सर, यस। सो ऐसे ही बच्चों के एजुकेशन में होता है। आप पीएफ यूज कर दोगे, आपका पीपीएफ यूज कर दोगे, तो आपने रिटायरमेंट के लिए इकट्ठा किया है, बच्चों के एजुकेशन में यूज कर दोगे, एंड व्हाट हैपेंस इज चाइल्ड अपने पैर पे खड़ा हो जाता है। आपके लिए आपको सहारा चाहिए, और वो सहारा होता है आपका चाइल्ड, और वो जब पैसा देता है वो। बट अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, जो पेरेंट्स इतना पेन लेता है ना, उन पेरेंट्स को फिर पेन ज्यादा मिलता है। उन पेरेंट्स को जब बच्चों का सपोर्ट की जरूरत होती है, अनफॉर्चुनेटली दे मे गेट, दे मे नॉट गेट। सो हाउ मेनी ऑफ यू विश कि हर बार when it comes to education of children your retirement should sacrifice or your retirement should suffer? कितने लोग चाहते हैं कि रिटायरमेंट भी सफर होना चाहिए? ऐसा ही अपना हम लोगों ने ऐसा सीखा है ना कि कुछ चाहिए, पेन इज ऑलवेज गुड। तो पेन लेना चाहते हो रिटायरमेंट का? नेवर। एग्जैक्टली सर, दिस इज समथिंग विच यू नीड टू कीप इन माइंड। तो अगर ये नहीं चाहिए तो फ्रेंड्स, जिनके बच्चे छोटे हैं, जिनके बच्चे मतलब जिनकी एज छोटी है, दे शुड स्टार्ट अर्ली, ड्राइव स्लोली एंड रीच सेफली। और ये कहाँ पे पहुंचना है, तो इस तरीके से आपके डेस्टिनेशंस होंगे कि बच्चों को बेस्ट ऑफ बेस्ट देना है। जब उनका चाइल्ड एजुकेशन चल रहा है, नो इट वुड नॉट बी डेफिनेटली विधि मैडम, दिस इज समथिंग विच आई वांट टू हाईलाइट, क्योंकि ये आजकल हम लोगों ने इन 20 इयर्स में एक चीज देखी है मैडम, कि मेजोरिटी पेरेंट्स जिनके बच्चे अच्छे हैं, पढ़ाई में अच्छे हैं, वो बाहर जाना चाहते हैं, हम बाहर भी भेज देते हैं, बट फॉर देयर एजुकेशन
they have to sacrifice with their retirement purpose. And this is a serious thing which we have to take in mind. और आप अगर इस जर्नी को देखना चाहते हो, हमको करना है ये सब चीजें, बट फॉर दैट वी नीड टू प्लान। और ये प्लानिंग कैसे होगा? तो आई एम गोइंग टू शेयर दिस प्लानिंग इन 6 फेजेस। हमारे बच्चों के 6 फेजेस हैं। तो फेज नंबर 1 जो है, उसमें आप देखोगे हाउ दिस एक्सपेंसेस इनकर, कैसे एक्सपेंस होते हैं। इसमें मैंने तीनों, मतलब एक छोटे से टाउन में कोई है, इकोनॉमी और अफ्लुएंट, मतलब जहाँ पे मेट्रो सिटीज जैसे बॉम्बे जैसे सिटीज में अगर कोई रहता है तो कैसे कैसे एक्सपेंस होते हैं, और इन एक्सपेंसेस को मैंने फेज में डिवाइड कर दिया है। तो मान लीजिए अगर बच्चा पेट के अंदर है, जब वो बाहर भी नहीं आया है, उसके पहले से फेज 1 शुरू होता है। एंड प्रेगनेंसी टेस्ट से लेके बहुत सारे टेस्ट करवाने पड़ते हैं और एक्सपेंसेस होते हैं। जो आप देखोगे तो छोटे सिटी में, छोटे स्मॉल में इट गोज फ्रॉम 18,000 और बड़े सिटी में वो चलता है 2,66,000। दिस इज समथिंग विच हैपेंस इन फेज 1, बच्चे के बॉर्न होने से पहले। फेज 2 आता है जब बच्चा 0 से 3 साल तक रहता है, दैट इज कॉल्ड फेज 2, जहां पे हम डायपर्स देंगे, वैक्सीनेशन करवाएंगे, सब कुछ ऐसे, ये सारे एक्सपेंसेस हम करेंगे। उसके एक्सपेंसेस आएंगे ऑलमोस्ट अराउंड 48,000 से लेके 10,30,000 रुपए तक। आई एम सॉरी। अब ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं, क्या आपने कभी सोचा है, कभी आपने कैलकुलेशन किया है? मैं इंटेंशनली ये चीजें बता रहा हूं बिकॉज दिस इज एन आई ओपनर एंड वी नीड टू थिंक अबाउट इट। फेज 3 आएगा जब बच्चा 4 से 13 साल पे आएगा। इसमें भी उसकी स्कूलिंग शुरू हो जाएगी, उसके ट्यूशन फीस आएंगे, यूनिफॉर्म्स आएंगे, डॉक्टर फी की फीस आएंगी, क्लोथिंग आएगा, सब आएगा। आप छोटे से टाउन में हो तो 1,34,000 के आसपास का खर्चा होता है, और बड़े सिटीज में हो तो इट गोज टू अराउंड मैक्सिमम 221,60,000। यस फ्रेंड्स, फेज 4 अगर आप देखते हो तो वहां पे 14 से 17 इयर्स की जर्नी है, जहाँ पे बच्चों की फीस, स्कूल फीस आएगी, इवेंट्स आएंगे, यूनिफॉर्म्स आएंगे, वही सारे एक्सपेंसेस है, पर कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, दिस दैट, ये सारी चीजें आएंगी। बच्चा बड़ा हो जाता है, बर्थडे पार्टीज करता है, फ्रेंड्स और के साथ करता है, उसमें भी खर्चे होते हैं। एंड वी ऑल आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, but unfortunately we are not planning about the major events of our life, उनके जो हायर एजुकेशन के लिए, उसके लिए। एंड दैट इज व्हाट विच आई वांट टू एक्सप्लेन यू। फेज 4 में अगर आप जाते हो तो वो 1,38,000 से लेके ऑलमोस्ट 24 lakhs तक का एक्सपेंस होता है। फेज 5 इज 18 से 22 साल का एक्सपेंडिचर। आप देखिए फ्रेंड्स, एज बदलती है, खर्चे भी बढ़ते हैं, थिंग्स आर चेंजिंग, और यहाँ पे हम लोग उसको ग्रेजुएशंस करवाएंगे। छोटे टाउन में 10 लाख से लेके बड़े टाउन में 2,50,00,000, क्योंकि कुछ लोग इस टाइम पे बच्चों को अब्रॉड भी भेजते हैं। और ये जो फीस मैंने कैलकुलेट की है वो कम से कम की है, शायद इससे ज्यादा होती है पर इससे कम नहीं होगी। बीएससी, बीए, बीकॉम कहीं पे भी आप ले लो, इतने खर्चे आते हैं। दिस इज समथिंग विच आई हैव डन, मतलब ये इसीलिए लिया है बिकॉज वी हैव नॉट टेकन, मतलब हमको पता है बट हमने कभी इसके ऊपर फोकस नहीं किया। ऐसे ऐसे खर्चे होते हैं बट वी हैव नॉट कंसिडर्ड दिस। इसीलिए मैंने ये चीजों को आपके सामने लाया हूं। बाहर भी भेजना है बच्चों को, कुछ भी करना है, आपका खर्च होने वाला है। आई एम सॉरी, आई एम हैविंग सम थ्रोट इन्फेक्शन टुडे। वेल, मैंने एक बहुत ही अच्छा एक सर्वे भी किया था कि टॉप 6 यूनिवर्सिटीज ऑफ वर्ल्ड, दुनिया में हम लोग बेस्ट ऑफ बेस्ट अगर एजुकेशन देना चाहते हैं तो भी हमें इतनी एक्सपेंसेस के लिए प्रिपेयर रहना है। ये साल की फीस है फ्रेंड्स। अगर आप एमबीए भी करवाना चाहते हो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से यूके में, तो 68 लाख तक का खर्चा हो सकता है। यही चीज आप छोटी सी, मतलब 45 lakhs में आप डिग्री ऑफ म्यूजिक में अगर बच्चों को कुछ करना है तो भी इतना ही खर्चा होगा। सेम वे आप देखो, लेविसबर्ग में भी 35 lakhs is the expenditure for just and business administration degree, biochemistry degree. So this is something which you need to take care. इसके ऊपर थॉट डालने की जरूरत है। और ये आज के एक्सपेंस है फ्रेंड्स। अगर मैं आपको एक्चुअल फिगर्स बताऊं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में 55 lakhs जो फीस है अभी, वो पोस्ट कोविड इट हैज गॉन टू 75 lakhs।
और ये जो पीपीटी बनाया था 55 lakhs था, और अभी मैं गूगल कर रहा था जस्ट बिफोर प्रेजेंटेशन, दिस फीस हैज ग्रोन टू 75 lakhs। तो जिस तरीके से फीस बढ़ रही है, क्या आपका प्लानिंग बढ़ रहा है? आपके 5,000 की एसआईपी अगर चल रही है तो डेफिनेटली फ्रेंड्स यू आर नॉट गोइंग टू अचीव योर गोल। आपकी कोई पॉलिसी चल रही है तो यू आर नॉट गोइंग टू अचीव योर गोल। सो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू टेक केयर। अगर इन सारी चीजों को अगर आप केयर करके चलते हो, देन इट कम्स शादी वादी की बात आती है, जिसको हम बोलते हैं फेज 6। और हम लोग चाहते हैं कि डेस्टिनेशन वेडिंग हो, नॉर्मल वेडिंग हो, इकोनॉमी वेडिंग करेंगे तो भी आज के दिन में 7 lakhs का खर्चा आएगा, और अगर अच्छा वेडिंग करते हैं तो भी 1.5 करोड़ के आसपास का खर्चा होता है। सो दिस आर द फ्यू फिगर्स विच आई वांट टू हाईलाइट यू फ्रेंड्स, जो आज के दिन का है। बट अगर आपका बेटा आज 3 साल का है और 20 साल के बाद आपको पैसे की जरूरत है, देयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन वो काम करेगा। और वो इन्फ्लेशन नॉर्मली, कितने लोगों को पता है कि इन्फ्लेशन आज के दिन में हमारी इकोनॉमी में कितना है? कैन एनीबॉडी गेस कितना इन्फ्लेशन है अभी अपना? 4.4। 4.4। सुपर, थैंक यू सो मच। बट फ्रेंड्स, ये जो इन्फ्लेशन है वो एजुकेशन का नहीं है। ये जो इन्फ्लेशन है वो हमारा नॉर्मल जो हमारे एक्सपेंसेस है, विच इज अराउंड 9% ऑफ योर टोटल इनकम, बेसिक नीड्स के है, जिसमें शायद आपके कपड़े नहीं है, जिसमें आपके शूज नहीं है। और एजुकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो इन्फ्लेशन इज नॉट लेस देन 10%। अगर आपको कैलकुलेट भी करना है तो जस्ट पास्ट में चले जाइए। जिन लोगों ने आज से 20 साल पहले अपना एजुकेशन खत्म किया, किसी ने एमबीए किया होगा या किसी ने किसी भी फील्ड में मास्टर्स किया होगा, आपका जो एक्सपेंस है और आज का जो एक्सपेंस है, चेक द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। 10% से नीचे कहीं पे भी नहीं आएगा। सो वी नीड टू चेक, आर वी प्रिपेयर्ड फॉर दिस? सो दिस आर द फिगर्स विच इज टुडे। और डेस्टिनेशन वेडिंग की जो हम बात कर रहे हैं वो शायद उदयपुर में भी हो या फिर मिलान में हो, बट यू नीड टू प्लान इट। क्योंकि हम लोग नॉर्मली बोलते हैं पीपल हु फेल टू प्लान, दे आर प्लानिंग टू फेल। दिस इज समथिंग वेरी सीरियस फ्रेंड्स, हमें इसके ऊपर थॉट डालने की जरूरत है। So these are the few expenses. We are going to share this slide, this screen to you. आप इस स्क्रीन के फोटोग्राफ भी ले सकते हो। आप अपने हिसाब से जो फेज हम लोगों ने आपको शेयर किया है, आप अपने हिसाब से इन फेज के ऊपर आज 1 घंटा बैठ के एक थॉट तो दीजिए फ्रेंड्स कि फेज 1 में हमारा कितना एक्सपेंस हो रहा है, 2, 3, 4, 5, 6, एंड देन आफ्टर वी कैन स्टार्ट प्लानिंग फॉर द सेम। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि वी डोंट नो वेयर वी वांट टू गो। नॉर्मली यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और अगर कहीं पे भी जर्नी करनी है तो यू नीड टू नो कि आपको कहाँ पे पहुंचना है। सो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स, आप ये फेज वाइज जो मैंने एक्सपेंसेस दिए, उस एक्सपेंसेस को आप सिर्फ नोट डाउन कर दीजिए। ये नोट डाउन करने के बाद वी आर देयर टू हेल्प यू, वी कैन हेल्प यू इन आवर 1-to-1 मीटिंग, जहां पे उस फेज को अचीव करने के लिए और इन्फ्लेशन के साथ कितनी फिगर आती है दैट वी कैन शेयर। आई एम जस्ट शेयरिंग अ स्मॉल फिगर कि आपके बच्चे को अगर फाइनेंशियली फ्री करना है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। आई वुड लाइक टू आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगर आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अगर हम कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? रिटर्न्स, पैसा, इन्वेस्टमेंट, टाइम, क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? You can use the chat box, please, friends. Returns. Yes, Vidhi madam, returns is important. Anything else? Time. Lalit sir, absolutely correct. क्योंकि समय सबसे बलवान है, और ये जो समय है उसकी जो ताकत है वो बहुत बड़ी है। फ्रेंड्स, टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड देन कम्स रिटर्न्स। अगर आप देखोगे तो अगर आपका बेटा या बेटी 1 साल का है और आपको 25 लाख बनाने हैं आने वाले 20 साल के अंदर, देन
you need to invest 3087 rupees. सिमिलरली अगर आपका बेटा या बेटी 3 साल का है और उनकी एज जब 20 साल की होती है, वही 25 लाख अचीव करने हैं तो आपको 4000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। 5 साल का बेटा या बेटी है तो आपको महीने के 5000 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और 10 साल का है तो 11000 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। सिमिलरली फॉर 50 lakhs and 1 crore. This is something most important which you need to take care whenever you are planning your children's education or for their marriage. And now the time comes, friends. ये चीज अगर आप मानते हो कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, तो नाउ आई थिंक यू आर क्लियर। जो आपके एक्सपेक्टेशंस थे, जो तुषार ने पूछा था कि कितना कैसे करना है, सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको शेयर किया है, दैट इज टेक अ स्नैप ऑफ दिस स्लाइड। इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। उसके बाद one to one, definitely we can help you, because this is what exactly we do. तो आपकी अगर डेस्टिनेशन क्लियर हो जाएगा, डेफिनेटली वी कैन अचीव योर गोल। एंड फॉर दैट नाउ शैल आई ओपन द सरप्राइज? मैं सरप्राइज ओपन कर दूं? यस और नो? अब कर दीजिए फ्रेंड्स। मैंने आपको कमिट किया था कि मैं मैक्सिमम 40 से 45 मिनट्स में आपको मेजॉरिटी हम शेयर करेंगे। आई होप यू enjoyed this. Now the time is to open this. Nikhil bhai, let's take the suggestion feedback from all of the participants, then we can open the surprise. How it will be? Yes, definitely. Let us came to know the interest of all the participants, that how eager they would like to know the surprise. Definitely, friends, if you are eager, I am definitely. We have just kept a small form. एक छोटा सा फॉर्म फिलअप किया है। अगर आप ये फॉर्म फिलअप करोगे तो हम जो सरप्राइज को अनबॉक्स करने जा रहे हैं, उस सरप्राइज में वी आर गोइंग टू गिफ्ट यू दैट पर्टिकुलर थिंग एट योर डोर स्टेप। एंड बेस्ट पार्ट क्या होगा फ्रेंड्स, अगर इसको आपने फॉलो कर दिया ना, तो आपका बेटा या बेटी 101% will become an extraordinary apart from their education. And this is something which I am going to share you, friends. ये Google form do fill up, so in order to achieve your gift, which will help you making your child definitely extraordinary. So this is an unboxing of this surprise. Friends, we would like to share you one scenario. मैं आपको एक scenario share करना चाहता हूँ. On one side, there is a person, आपका कोई एक लड़का है जो IIM या IIT से बाहर पास आउट होके निकलता है। एंड ऑन अनदर साइड, आपका बेटा या बेटी 5 साल की है और आपने उन्हें ये 3 चीजें गिफ्ट की है। एक पिगी बैंक, 3 पिगी बैंक। कितने लोग पिगी बैंक देते हैं फ्रेंड्स? बच्चों को पिगी बैंक दिया है कभी आपने? यस और नो टाइप कीजिए। यस और नो तो टाइप कीजिए फ्रेंड्स। यस गार्गी मैडम, थैंक यू सो मच। पिगी बैंक हम देते हैं बच्चों को, राइट? आपको आज जो आपका बेटा या बेटी छोटी है, उसको 3 पिगी बैंक देना है, और इन पिगी बैंक में फॉर एग्जाम्पल आप महीने के 300 रुपीज यू आर गिविंग हिम टू, जस्ट उसके लिए आप दे रहे हो। तो उसमें से 100 रुपए सेविंग्स में जाएंगे, 100 रुपए इन्वेस्टिंग में जाएंगे, और 100 रुपए गिविंग में जाएंगे। You will explain this to your child. If you wish, we can make a separate program for your kids. उनके नॉलेज के लिए उनकी तरीके से, उनकी भाषा में भी हम एक प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं। बट मेक श्योर, आज मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज से आपको इसकी हैबिट डालनी है। बच्चों को एजुकेट करना है कि एक 100 रुपए सेविंग्स में जाएंगे, दूसरे इन्वेस्टिंग में, और तीसरे गिविंग में। नाउ व्हाट इज दिस सेविंग्स? तो सेविंग्स मतलब जो बच्चों के शायद वो बैडमिंटन खेल रहा है या कुछ कर रहा है, तो उसके लिए आपको ये जो सेविंग का पैसा है, उसके शूज लेने हैं या रैकेट लेने हैं, वो इस सेविंग के पैसे से खरीदेगा। एंड मेक श्योर, आप बिलीव नहीं करोगे फ्रेंड्स, दिस विल वर्क लाइक एनीथिंग। मेक श्योर कि उसका जब भी ये एक्सपेंस आता है, ही हैज टू यूज दिस पिगी बैंक। सेकेंड कम्स इन्वेस्टिंग। वो हर महीने आपको ये पैसा दे देगा या फिर हर साल पैसा दे देगा। यू will guide him to invest, because in investments in the longer run उनकी wealth create होती है। and how they create wealth, उसके लिए मैं आपको एक टिप देता हूँ। वन इडियट करके मूवी है,
वो मूवी आपके बच्चों को दिखाइए, बिकॉज टुडे इज संडे, टुडे इज अ चिल्ड्रन डे. Give one super duper gift to them and show your children One Idiot movie on YouTube, which is completely free. तो आज बच्चों के साथ आप भी देखो, you will really enjoy that movie. और इन्वेस्टमेंट्स में कैसे पैसा बनता है वो हम सीखेंगे. That will be used in this piggy bank. और तीसरा पिगी बैंक है जो सबसे इंपॉर्टेंट है. वो तीसरे पिगी बैंक में आपका बेटा या बेटी जो पैसा सेव करेगा, जमा करेगा, he or she can utilize this money, उसको कहीं पे भी चैरिटी करनी है वहां पे. बट देर इज वन कंडीशन इन दिस पिगी बैंक. वो जहां पे एक बार चैरिटी कर दिया वहां पे रिपीट नहीं करेगी फॉर हर एंटायर लाइफ. सो से फॉर एग्जाम्पल उसको लगा कि मुझे ये भाई साहब को, ड्राइवर है आपका या प्यून है या आपके यहाँ पे मेड आती है, उनको हेल्प करना है किसी चीज के लिए, ही और शी विल हेल्प हिम और हर एक ही बार. दूसरी बार किसी और को करेंगे, तीसरी बार किसी और को करेंगे. नाउ फ्रेंड्स, आप समझिए कि जब बच्चे के खुद के पैसे हैं तो वो सेविंग्स में करेंगे, दे आर कंफर्टेबल. इन्वेस्टमेंट्स में करेंगे, दे विल कंफर्टेबल. गिविंग में करेंगे, वो भी कंफर्टेबल होते जाएंगे, वो देना शुरू करेंगे. बट व्हेन ही और शी स्टार्ट्स गिविंग दिस मनी, दे विल स्टार्ट एनालाइजिंग, क्या मैं सही बंदे या बंदी को दे रहा हूँ, क्या मैं राइट पर्सन को पैसे दे रहा हूँ, क्या उसकी नीड जेन्युइन है, शुड आई हेल्प हिम और हर. ये सारी चीजें वो इवेल्युएट करना शुरू करेंगे. जैसे जैसे वो बड़े होंगे उनकी ये हैबिट बनती जाएगी. एंड नाउ ऑल ऑफ अ सडन वो 25 साल के हो जाते हैं. 5 साल से लेके 25 साल तक, 20 years, your child has done this process. Can you imagine at the age of 26 बेटा या बेटी IIM से पास आउट नहीं होगी, फिर भी आपको लग रहा है कि वो लाइफ में सक्सेसफुल बन जाएगा? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक अगर ये चीज फॉलो करता है, कितने लोगों को लगता है कि वो लाइफ में सक्सेसफुल बन जाएगा? नाउ आई एम ओपन, प्लीज शेयर मी. गार्गी मैडम, थैंक यू सो मच. यस, किसी और को नहीं लग रहा है क्या? यस 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 यस, सुपर. दिस इज समथिंग विच इज एन सरप्राइज विच आई वुड लव टू अनबॉक्स. और जिन लोगों ने ये शीट भरा है गूगल शीट, उनके यहाँ पे पिगी बैंक पहुंच जाएगा हमारे यहाँ से. वी वुड लव टू शेयर दिस पिगी बैंक टू योर किड्स इन नेक्स्ट 1 week. सो फ्रेंड्स, ये एक हफ्ता जो चिल्ड्रंस डे का है, ये एक हफ्ता जो बच्चों का है, उसमें लेट अस स्टार्ट एंड सुपर डुपर हैबिट फॉर अवर किड्स. और इसी के साथ इट इज द टाइम टू टेक एक्शन. एक्शन लीजिए, जो नॉलेज लिया है, जो फेज वाइज आपको, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, नॉलेज इज सुपर, नॉलेज इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बट दैट नॉलेज इज वर्स्ट इफ नॉट इम्प्लीमेंटेड. उस नॉलेज का कोई फायदा ही नहीं है जो अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे. तो टू इम्प्लीमेंट दिस, just put down the figures, just sit with your child, just understand with him उसको क्या बनना है, कहाँ पे पहुंचना है, what he desires, उसके aspirations क्या है. हो सकता है कि बच्चा शायद आज बोलेगा कि मुझे यूट्यूबर बनना है, बच्चा शायद बोलेगा कि मुझे आर्टिस्ट बनना है, बच्चा शायद बोलेगा मुझे पायलट बनना है, वट एवर इट इज. शायद उसकी वो गोल चेंज भी हो सकता है उसकी एज के साथ. बट वन थिंग इज श्योर, आपका इन्वेस्टमेंट होने वाला है, वो कहीं पे भी जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट होने वाला है. एंड वी वांट टू गिव हिम वर्ल्ड्स बेस्ट एजुकेशन, वी वांट टू गिव हिम वर्ल्ड्स बेस्ट, जो उसके एस्पिरेशन है उसको अचीव करने के लिए सपोर्ट. दैट्स, और ये क्यों होता है पता है? नॉर्मली सक्सेसफुल पेरेंट्स, सक्सेसफुल पर्सन, सक्सेसफुल फैमिली कब बोलता है समाज? समाज सक्सेसफुल तभी बोलता है जब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है, आप अपने बच्चों को बेस्ट शिक्षा दे सकते हो, आप अपने बच्चों का अच्छा वेडिंग कर सकते हो, तब समाज बोलता है कि ये सक्सेसफुल है. यही सिंपल डेफिनेशन है ना. और समाज को छोड़ दीजिए फ्रेंड्स, पर्पस ऑफ आवर लाइफ should be very clear. At least we should be there for our family. And for that, you need to start taking action from today. So with this short note, spend an hour with your child and enjoy this super duper day. Finally, फाइनेंशियल फ्रीडम जरूरी है, और ये फाइनेंशियल फ्रीडम हम लोग
नॉर्मली फाइनेंशियल हैप्पीनेस प्रोग्राम भी करते हैं, जहाँ पे 7 इवेंट्स टू ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम आता है, जहाँ पे बच्चों का एजुकेशन भी आता है, बहुत सारी डिटेल में चीजें लेते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है, डू कनेक्ट विथ अस। दिस आर द फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइंड हु आर विथ मी, और जो फाइनेंशियल प्लानर्स हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हम हमारी इस जर्नी ऑफ वेल्थ क्रिएशन, जो इन्वेस्टर्स की जर्नी है, उसे और अच्छी बनाने के लिए हमारे साथ है। तो टेक अ स्नैप ऑफ दिस, वी कैन शेयर यू ऑल दिस। ये सारी चीजें हम जो फाइनेंशियल हैप्पीनेस प्रोग्राम करते हैं, उसमें भी हम बहुत सारा डिटेल में लेते हैं। तो if anybody of you is interested in that program, we do this offline as well as online. तो आपको इंटरेस्ट है तो डू कनेक्ट विथ अस, एंड विद दिस वुड लाइक यू, थैंक्स टू यू फ्रेंड्स। और भूलना मत, अगर चाहते हो बच्चों का भविष्य बेहतर, तो गूगल शीट पे फिलअप कर दीजिएगा। दैट विल हेल्प यू एंड दैट विल हेल्प अस ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग।